Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 9th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about poem A Legend of Northland, which is belong with the book Beehive. Okay, so what is this? If you are talk about the poet Phoebe Carey was the poetess of this poem. If you talk about the writer, means the poetess Phoebe Carey, who was she was born in the year of 1824, 4th September 1824. She was born and she was died in the year of July 31, 1871. She was the American poetess and she was also the younger sister of the Alice Carey. Okay, these two sisters co-published the poems in 1849 and then each went to publish volume of their own. So this is the introduction about the our poetess Phoebe Carey. And now time to introduce about the central idea of the poem. What is the central idea of the poem of the Legend of the Northland that we understood first, that then after we will take the idea about the explanation of the poem. This poem puts the forth the idea that we should not be selfish and always help the needy. Okay, whenever the time will come, we always help the needy people. A selfish person has no satisfaction in life. This is the central idea of the poem. Okay, what is the theme? If you are talk about the poem The Legend of the Northland, in this poem you can see the Northland is a very cold region, okay, covered with snow, that we all know. Its closeness to the North Pole give this place a colder weather with a very few hours of sunlight. The poetess has written that here the hours day are few and nights are long in winter. The people are unable to spend the whole night sleeping. This is the atmosphere about the Northland. Okay, if you are talk about, the poetess doesn't believe into the authenticity of the story, yet she is tempted to share the story. What is the story in this poem? If you talked about, in this poem you can see one saint, means जो पवित्र एक धर्म गुरु होते हैं, that is called saint. His name was Saint Peter. So once Saint Peter was on the usual round of traveling and preaching people. Okay, लोगों को उपदेश देने के लिए, preaching means उपदेश. Okay, so at that time he felt hungry. He felt hungry, so he chanced upon an old cottage where a little woman was making cake. Saint Peter went there and near the woman and asked for some cake to eat. The woman was self-centered. The little woman stared him and started to bake a small cake for him. After the cake was done, completed, she found too big to give it for free. Okay. उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी है उसको देने के लिए. So she decided to bake an even smaller cake. वो नक्की करती है कि भाई इससे भी छोटी केक वो उसको देगी. This went on the till she made a wafer for a Saint Peter. She even kept that wafer herself instead of giving to Saint Peter because she was too greedy to part with a single morsel of the food. So on observing her greedy, उसका ग्रीडी नेचर ऑब्जर्व करने के बाद सेंट पीटर बिकम वेरी एंग्री ऑन हर. ही सेड दैट शी वाज टू सेल्फिश, डेवल इन अ ह्यूमन फॉर्म. ओके, शी वाज द डेवल इन द ह्यूमन फॉर्म. ही कर्स्ड हर, उसको शाप दे देते हैं, टू बिकम अ बर्ड एंड लीव सर्चिंग फॉर अ स्कैंटी फूड इन द जंगल बाय डिगिंग ऑल ड्राई एंड हार्ड वुड. After Saint Peter's curse, the little woman went through the chimney and turned into the woodpecker. So her whole body turned the coal black
because of going through the chimney. A red cap turned into the red scarlet and woodpecker. After that, people see her in the forest where she lives by boring and boring the dry wood in the search of the food. So greedy होना बहुत ही खराब बात होती है. If you see the needy people, you must and always help to the needy people. So this is the theme of the poem. Okay, this is the story, one story about the Northland, which is about the sandpeter. Let's see explanation. Away and away in the Northland. If you are talk about the long time in the Northland, where the hours of the day are few, जहाँ पे दिन के जो काम टाइम होता था वो बहुत ही कम होता था, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नो कवर दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. ओके, that they cannot sleep them though. Okay, they cannot sleep just because of the night are so long and they are very few. Where they harangue the swift reindeer, where they harangue the swift reindeer. Harangue मतलब क्या होता है? To strapped and fasten. Okay, क्या उसको जोतना, जैसे हम बेल जोतते हैं ना खेतों में, दैट इज कॉल्ड, वो उस टाइप के अंदर. स्लेज का मतलब होता है एक तरीके का कार्ट बनाना, ठीक है, जो आइस के ऊपर चलता है, बराबर. तो उसके अंदर वो क्या किसको बिठाते हैं? रेंडियर को बिठाते हैं. दैट वी ऑलरेडी नो. रेंडियर क्या होता है? जो बर्फीला जो एटमोस्फियर होता है, जो जगह होती है वहाँ पे it can easily survive, so that is called reindeer. So where they harness the swift reindeer, जहाँ पे वो रेंडियर को जोतते थे बर्फ की गाड़ी बना, बर्फ में चलने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए. टू स्लेडेज when it snow. ओके, तो वहाँ पे वो उसको स्लेज करते थे, मतलब कि वो उसका यूज़ करते थे. अ कार्ट इज़ यूज टू आइस, बराबर, बर्फ़ की जो गाड़ी होती थी उसके अंदर चलाते थे. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और बच्चे जो होते थे वो कैसे? बियर, भालू के बच्चे जैसे दिखते थे. क्यों? क्योंकि इतना बर्फीला एटमोस्फियर होता था. द एटमोस्फियर इज टोटली अराउंड दैट. तो बच्चों को पूरी तरीके से वार्म कपड़ों के अंदर ढक दिया जाता था. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द चिल्ड्रन आर लुकिंग लाइक बियर्स कब. ओके, इन देयर फनी एंड फ्यूरी क्लोथ्स. ओके, उनके जो फनी मीन्स अमेजिंग, जिसको देखकर हमें हंसी आती है, दैट इज कॉल्ड फनी. एंड फरी मीन्स कवर्ड विथ अ फर. ओके, जो फर वाली जो मतलब जो एनिमल्स के ऊपर जो फर आती है, रुआटी जिसको हम कहते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड, वो इस वजह से दे आर लुकिंग लाइक अ बियर्स कब. They tell them a curious story. Okay, they tell them a curious story. Curious means a strange. Okay, curious, what is the meaning of curious? Strange. They tell them a strange story, बराबर, अनोखी जिसको कहा जाता है. I don't believe it's true. Okay, poet said he didn't believe this story is true, and yet you may learn a lesson. Okay, you may learn a lesson from this story if I tell the tale to you. T-A-L-E, T-E-double-L, tale means कहना, and T-A-L-E, tale means story. Okay, this is the difference between two pronunciation. Same pronunciation, different spelling. You can see T-E-double-L, tale, T-A-L-E, tale. T-E-double-L, tale means कहना, T-A-L-E, tale means story. Okay, so if I tell the tale to you, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा. अब कहानी स्टार्ट होती है. The story will start from here only. Once when the good sandpeter lived in the world below. Once there was a time, saint, what is the meaning of saint? Saint means a person of एक्सेप्शनल होलीनेस. ओके, जो बहुत ही पवित्र होता है, दैट हमको इसको क्या कहते हैं? वी कॉलिंग देम संत. ओके, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, हु वाज लिविंग इन द वर्ल्ड बिलो, एंड वॉक्ड अबाउट अ प्रीचिंग. प्रीचिंग मीन्स गिव अ रिलीजियस स्पीच. ओके, प्रीच, दैट इज कॉल्ड प्रीच, रिलीजियस स्पीच देना, उपदेश देना. तो ही वॉज वॉक अराउंड फॉर द प्रीचिंग. जस्ट एज ही डिड, यू नो, ऑल द टाइम सेंट्स ड्यूटी इज दैट टू प्रीचिंग टू द पीपल. He came to the door of a cottage. At the same time, he came to the door of a cottage. Cottage means a small house, that is called cottage. झुपड़ी जिसको कहते हैं. In a travel round the earth. He was traveling around the earth, where a little woman was making cake. Okay, she was making cake. Cake means वो रोटी बना रही थी. Woman was making a cake and baking them on the ham. Baking means to cook, पकाना. Okay.
वो क्या पका रही थी, देम ऑन टू द हेर्थ। ओके, हेर्थ का मतलब क्या होता है, फायर प्लेस, भट्ठी जिसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड हेर्थ। ओके, फायर प्लेस, चूल्हा जिसको कहते हैं, गांव के अंदर होता है ना, दैट इज कॉल्ड हेर्थ। तो शी वॉज मेकिंग बेकिंग देम ऑन टू द हेर्थ एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग। ओके, फेंट मीन्स वीक, कमजोर, और फास्ट मतलब के उपवास रखना, मीन्स टू अवॉइड हैविंग अ फूड ऑन अ स्पेशल ओकेजन। जो संत लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा फास्ट रखते हैं। तो संत जो था, पीटर जो था, वो फेंट हो चुका था। फेंट मीन्स कमजोर हो चुका था, वीक, ही बिकेम द वीक एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फास्टिंग, बराबर। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, डे वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट मतलब नियरली it was completed. He asked her from her store of a cake to give him a single one. Peter Sant was asking that lady कि भाई मुझे एक टुकड़ा खाने के लिए दे दो, बिकॉज बहुत भूखा था और कमज़ोर भी हो चुका था। सो he asking from her about one little piece of a cake. So she made a very little cake. So after asking the Saint Peter, उस लेडी ने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, ओके, बैक मीन्स पुट डाउन, जैसे रख देना, दैट इज कॉल्ड ले। ओके, तो उसने पका के जैसे ही रखा उसको, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। वेन एवर शी शो दैट, सीम, SEEM, सीम का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। तो उसने उसको जब देखा तो अपीयर, उसको लगा, क्या लगा उसको, क्या लगा कि वो बहुत ही बड़ा है, देने के लिए बहुत ही बड़ा है, तो वो उसको देना नहीं चाहती थी। Therefore she naked another. Okay, need means क्या होता है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, मेक अ मिक्सचर, तो उसने फिर से आटा गूंदा, क्योंकि शी थॉट दैट ये बहुत बड़ा है, आई विल नॉट गिव अ लार्ज और ह्यूज केक टू हिम। ओके, so she didn't give the cake to him and she still a smaller one. उसने फिर से एक छोटा सा, she made a smaller one, but it looked, when she turned it over, a large as first had done. Another time whenever she made it, okay, and after putting down onto the plate, she thought that it is too big to give to him. ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो मैं उसको ना दूँ। She thought that, बराबर, वो लेडी ऐसा सोचती है कि she could not give the huge cake to the saint. Then she took a tiny scrap of dough. Now scrap means a small piece, okay, and dough, dough का मतलब क्या होता है, जो फ्लोर होता है ना, आटा मिक्सड विथ वाटर, जैसे हम आटे को पानी के साथ जैसे मिक्सचअप करते हैं, ओके, और उसको फिर रोटी के लिए जो आटा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉ। तो उसने क्या किया, फिर से डॉ किया एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको एकदम रोल्ड करके एकदम से फ्लैट, शी मेड अ फ्लैट पीस, मतलब एकदम पतला बना दिया। एंड बैक्ड इट अ थिन एज वेफर, और कितना पतला बना दिया, जैसे एक वेफर जो होती है ना, इतना पतला बना दिया। बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, बट शी कुडंट पार्ट विथ मतलब give away, she can't give away that back to that Saint Peter. She was so much greedy, बराबर। उसका दिल नहीं चल रहा था कि वो उसको दे दे, उसको खाने के लिए। ये सब जो है वो देख रहे थे, कौन देख रहे थे, सेंट पीटर देख रहे थे। For she said, my cakes that seems too small, बराबर है। केक मतलब अ स्वीट फूड मेड अ मिक्सचर ऑफ अ फ्लोर, शुगर, बटर, जिसको कहते हैं ना, केक का टुकड़ा बना रही, एक तरीके की मीठी रोटी वो बना रही थी। तो उसको देखकर उसको ऐसा लगा, व्हेन आई ईट फॉर देम माई सेल्फ, तो उसने उसको देखकर कहा कि जब मैं ये बनाती हूँ केक, तो मेरे खाने के लिए जब बनाती हूँ तो मुझे बड़ी नहीं लगती है, बराबर है। इफ आई मेड दैट केक फॉर माई सेल्फ, इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ बिग, इट इज लुकिंग लाइक टू स्मॉल, array yet too large to give away, so she put them on the shelf. Okay, shelf means along the piece of the wood, shelves, okay, अलमारी, क्या जो अलमारी में जो खाना रखा जाता है, that is called shelf, इसको shelf कहा जाता है।
तो उसने क्या किया कि जब मैं दूसरों के देने के लिए बनाती हूँ तो ये मुझे बहुत बड़ी लगती है, तो उसने उसको अलमारी में रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रो एंग्री। आफ्टर दैट ग्रो मीन्स बिकम, हो गए, क्योंकि तब से ये लोग सेंट पीटर सब कुछ उसकी नाटक देख रहे थे। एट दैट टाइम ही डिडेंट स्पीक एनी सिंगल वर्ड, बट आफ्टर फाइनली, क्योंकि उनको भूख भी लगी थी, कमज़ोर भी हो गए थे, और उनको खाना सामने होते हुए भी वो लड़ी ऐसा कर रही थी, नहीं दे रही थी, बना रही थी, रख रही थी, बना रही थी, रख रही थी। दैट्स वाई ही बिकम वेरी एंग्री, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, ही बिकम द हंग्री, बराबर है, नीड फॉर फूड, उसको बहुत भूख लगी थी, एंड वो फैंट मीन्स कमज़ोर पड़ चुके थे, वीक पड़ चुके थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। ओके, इनफ मीन्स सफिशियंट, उसने बहुत ज़्यादा उसका मजाक बना दिया था। प्रोवोक मीन्स उसका टू मेक हिम एंग्री, ओके, उसका मजाक बना दिया था, उसको गुस्सा दिला दिया था उसको, किसको, सेंट पीटर को। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश। ओके, सेल्फिश मीन्स अ पर्सन हु थिंक्स ओनली फॉर अ पर्सनल एडवांटेजेस, स्वार्थी। ओके, द पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट ओनली ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ ओनली, दैट इज कॉल्ड सेल्फिश। तो वो लेडी को कहते हैं कि यू आर टू सेल्फिश टू डिवेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। डिवेल मीन्स टू लीव, ओके, इन अ ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म मीन्स इंसान के रूप में तुम एक शैतान, मतलब बहुत सेल्फिश पर्सन हो। यू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, यू हैव बोथ, गॉड गिव्स यू फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहते थे, तो यू आर लकी दैट यू हैव अ फूड, यू हैव अ शेल्टर एंड यू हैव अ फायर टू keep your body warm. In spite of that, if needy person came to your home, is it not your duty to give him a food to him? So Saint Peter become angry on that lady. Now you shall build as a birds do. Okay, now Saint Peter said to her that तुमको अब क्या करना पड़ेगा, यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू, तुमको पक्षियों जैसी लाइफ जीनी पड़ेगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, ओके, एंड शैल गेट योर स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब क्या होता है, टू स्मॉल इन अ साइज ऑफ अमाउंट, बराबर बहुत कम जिसको कहा जाता है, तुझे बहुत कम खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, ओके, बोरिंग मीन्स टू मेकिंग अ हॉल, बराबर तुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग मीन्स, बोरिंग एंड बोरिंग मीन्स क्या होता है, मेकिंग अ हॉल, ओके, छेद करना, दैट इज कॉल्ड। एंड ऑल द डे आर हार्ड, बराबर तेरे सारे दिन कैसे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, बहुत खराब हो जाएंगे, ड्राई वुड। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और ये जो कर्स, एक श्राप उसको मिलता है, शी वेंट आउट फ्रॉम द चिमनी। चिमनी क्या होता है, चिमनी मीन्स पाइप थ्रू विच अ स्मोक और स्टीम इज कैरिड आउट, बराबर है, जो खाना पकाने की छोटी सी पाइप होती है जिससे धुआं निकलता है, वो उसके अंदर से निकलती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, शी डिडंट स्पीक अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्यू वुड पैकर। वुड पैकर मीन्स एक बर्ड होता है विथ तुम कह सकते हो उसको बर्ड विथ स्ट्रॉन्ग बिल, ओके, एंड स्टीप टेल, बराबर, जिसको हम कहते हैं लक्कड़ खोद, बराबर है, तो वो क्या बन जाती है, एक बर्ड बन जाती है, वुड पैकर। एंड फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, एंड आफ्टर दैट, after getting the curse from the Saint Peter, she become the bird. She had a scarlet cap on her head. Okay, scarlet means bright red color की जो होती है, वो वैसी वाली उसकी कैप उसके हेड के ऊपर आ जाती है। And that was left the same. Okay, left the same, same means exactly like, उसके जैसी बन जाती है। But all the rest of her clothes were burned. Rest मतलब बाकी के जो उसके कपड़े होते हैं, it was burned, पूरे जल जाते हैं। बैक एज अ कोल इन द फ्लेम, ओके, फ्लेम मीन्स जो लपट होती है, फायर की जो आग होती है उसके अंदर से वो पूरे जलकर पूरे काले पड़ जाते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, ओके, एवरी कंट्री, कंट्री मीन्स विलेज, ओके, गांव, जो पूरे गांव के जो बच्चे हैं, दे सीन हर इन द वुड, वो जंगल में उसको देखते हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्री, जो कहाँ पे रहती है, झाड़ पे रहती है। टिल दिस वेरी डे, पूरे दिन मेहनत करती रहती है,
बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, बराबर। उसके ऊपर लकड़े के ऊपर वो टक 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 खोदती रहती है और फाइनली खाने के लिए वो तलाश करती है। सो Fauve Cary was the poetess of this beautiful poem. In this story, we will get a one single message that we always help to the hungry and needy people whenever they anytime comes to our home. So this is the central idea of this poem, guys. I hope you can understand what I explained word to word. मैंने central idea भी बताया, theme भी बताई, poet का introduction भी बताया और word to word explanation that I also done. Related to this video, whatever the PDF is there that I will send you, you have to write down in your notebook. And related to this poem, the test will also organize tomorrow, that also you have to write down in your HW notebook. In our next video we will discuss about the new chapter, new poem. Okay, bye, take care.